Okay, so very good morning to all of you. Let's start with the today's session, and today we are going to start with the Chebyshev filters. As of now, till date, we have seen is the Butterworth filter. Now we are moving towards the second type or second genre of the filters, that is Chebyshev filter. Now, I just want you to first draw your attention towards this expression given as mod of h of j omega equal to 1 upon 1 plus epsilon square cn square omega. It is given as mod of h of j omega. What is the meaning of mod over there? Amplitude response. The mod of h of omega indicates amplitude response. तो यहाँ पर मैं amplitude response लेने वाला हूँ, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट. Like the way you take ना a plus jb का क्या होगा? What is the a plus jb का amplitude response? 1 under root of a square plus b square. तो same way under root of 1 plus epsilon square cn square omega. Now you can see here, now we are having two terms. One is epsilon square, ये पहला टर्म है हमारे लिए, और सेकेंड टर्म हमारे लिए ये वाला है cn square omega. Understood? Now, and we have one more thing over here, it indicates n over here. एक n यहाँ पे दिया, ये अपने थर्ड चीज है. पहला चीज है epsilon square, दूसरा चीज है cn square omega, और तीसरा चीज है n. Why I colored n with different color? Because n indicates order. Fine, like nth order. What if I say if it is second order, क्या हो जाएगा फिर? अगर second order रहा तो क्या हो जाएगा? C2, third order रहा तो C3, fourth order रहा तो C4, and so on. Fine. So we have understood about this portion. What is the meaning of this? अब question आता है कि सर अब फिर epsilon और cn क्या है? Where cn omega, the nth order Chebyshev polynomial. What is Cn? Nth order Chebyshev polynomial is given by cos in brackets n cos inverse omega. Cos n cos inverse omega. Now guys, just tell me, what if n equal to 1? What will happen? If n equal to 1? ओमेगा, एज सिंपल एज दैट. अगर मैं n इक्वल टू 1 कर देता हूं तो ये n इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड cos इनवर्स विल बिकम एज गुड एज 1 इनटू ओमेगा, एंड माय आंसर विल बी ओमेगा. वेरी गुड सर, फैंटास्टिक. सेकंड क्वेश्चन टू यू. व्हाट इफ n इक्वल टू 0? व्हाट इफ n इक्वल टू 0? n is 0 here. Cos 0 is 1, that case is simply equal to 1. So kindly make a note of this. When it is 0, the value will be 1. And when it is C1, the value will be equal to omega. When it is 0, the value is 1. And when it is 1, the value is equal to omega. Okay? Fine. 0 पे 1 है, 1 पे omega. याद रखिए इसको आप. 0 पे 1 है, 1 पे omega है. And alternative expression for Cn omega is given over here. Cn omega equal to hyperbolic cos, in brackets, n hyperbolic cos inverse of omega. क्या फर्क होता है सर कॉस में और हाइपरबोलिक कॉस में? कॉस और हाइपरबोलिक कॉस, इन कॉस यू हैव दैट j टर्म ना, e raised to minus j theta upon 2, बट इन हाइपरबोलिक कॉस यू डोंट हैव दैट j वाला टर्म. फाइन. नाउ अब सुनिए सर, कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है? इसको बोला गया 7.43a, इसको बोला गया 7.43b. The form 7.43a is the most convenient to compute. क्यों convenient to compute? Because बचपन से हम लोग sin cos पढ़ते आ रहे हैं. Hyperbolic cos is something very recently we are learning about it. शायद आपने 11th 12th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा. हाँ भाई, cos hyperbolic cos का कुछ concept होता है. Fine. So most convenient to use 7.43a, but we'll be using 7.43a only when the value of omega is less than 1. And this will be using only when omega is greater than 1, provided omega, I am taking the magnitude part only. I'm least bothered about the polarity of it. So when omega is less than 1, I'm supposed to use 7.43a, and when it is omega more than 1, I'm supposed to use 7.43b. Now coming to
equation Cn, the Cn omega can be also expressed in the polynomial form as shown in table 7.3 for n equal to 1 to n equal to 10. तो table 7.3 यहाँ पर, before we come to table 7.3, just help me out, what was the value we have got for C0 and C1? C0 क्या आया था, C1 क्या आया था, ओमेगा. वेरी गुड. सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, यहाँ जस्ट पे अटेंशन. ये देखिए सर, C0 पे 1 है, C1 पे ओमेगा है. Satisfied? Get fast. Don't ask for the permission. You can see here C0 पे मुझे 1 मिला, yes, और C1 पे हमको क्या मिला, ओमेगा मिला. We are done with this part. Now what is C2? C2 ये कैसे आया सर? C2 is equal to 2 omega square minus 1. ये कैसे आया? Exactly. Now pay attention sir. यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया था, जस्ट रिप्लेस दिस एंटायर टर्म. कौन सा एंटायर टर्म? वेट, आई विल शो यू व्हाट टू बी डन, हाउ टू डू दिस. n इक्वल टू 2, करेक्ट, n2 है अभी. cos इनवर्स ओमेगा का बोलिए थीटा, cos इनवर्स ओमेगा क्या बोलने का, थीटा. तो आई कैन से थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ओमेगा. अंडरस्टैंड दिस? ओके. नाउ पे अटेंशन. अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर cos ऑफ 2 थीटा, व्हाट इज cos ऑफ 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. फाइन. 2 cos square theta minus 1. I'll rewrite in the proper form. It will be written as 2 cos square theta minus 1. बराबर. Cos of theta equal to cos square theta minus 1. Now you replace that theta equal to cos inverse omega over here. What will happen? 2 cos square all as it is है, और थीटा के जगह पे लिखने वाला हूं मैं क्या, cos inverse of omega, cos inverse of omega. And minus 1 as it is, लेकिन एक चीज याद रखिए सर, यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर किसका लिया है, पूरे का cos स्क्वायर है वो. तो आई नीड टू पुट हियर -2 एंड हियर एज वेल एज स्क्वायर. समझा क्या किया मैंने यहाँ पे? ये cos थीटा का स्क्वायर किया गया है, तो दिस स्क्वायर इज एप्लीकेबल फॉर cos स्क्वायर एज वेल फॉर थीटा एज वेल. तो क्या हो जाएगा अभी, cos स्क्वायर cos रेज टू -2 ओमेगा स्क्वायर. तो ये कट गया, क्या बचा, 2 ओमेगा स्क्वायर -1. 2 omega square minus 1. This is how I got that expression 2 omega square minus 1. समझा कैसे आया ये? Any question? ये कैसे आया? क्लियर यहाँ पे? अंडरस्टूड? ओके. ये मुझे कसम सर ने बताया, सर देखो ये ऐसा किया यहाँ पर. I was got little bit confused कि ये क्या किया, 2 omega square minus 1 कैसे आया? तो ये हेल्प करके सर देखो ये ऐसा किया है इसने यहाँ पे, इसका ऐसे करो आप. हाँ ओके फाइन, ठीक है. चलो यहां तक समझा आपको? पहले बोला फिल्टर्स डिफिकल्ट है, पूरा हार्डकोर मैथमेटिक्स इसके अंदर है. नाउ द शेबिशेव पॉलिनोमियल हैज द प्रॉपर्टी. अब ये प्रॉपर्टी देखो आप, ये प्रॉपर्टी को यूज करके उसने आगे का पूरा काम खत्म करने वाला है. Cn ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा Cn-1 ओमेगा माइनस ऑफ Cn-2 ओमेगा फॉर n ग्रेटर देन 2. C0 का निकाला 1, C1 का निकाला ओमेगा, C2 का निकाला क्या आया, 2 ओमेगा स्क्वायर -1. नाउ आई वांट टू कंप्यूट फॉर व्हाट, C3 ओमेगा. क्या आंसर होगा, 2 ओमेगा 3 - 1 2 C2 ओमेगा माइनस ऑफ 3 - 1 2 3 - 2 1 C1 ओमेगा. कंप्यूट एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस. कंप्यूट एंड टेल मी द आंसर. 2 ओमेगा एज इट इज, C2 ओमेगा कितना है, 2 ओमेगा स्क्वायर -1. बिल्कुल सही जवाब सर आपका. आगे बोलिए. माइनस ऑफ व्हाट इज C1 ओमेगा, C1 of omega is omega. So what is the answer you get? 4 omega square minus, हाँ क्या बोला आपने सर? आपने बोला 4 ओमेगा क्यूब माइनस 3 ओमेगा. हाँ ओके, 3 omega. Fine. This is what the answer Fenil has uttered right now. Let's see what answer we get. ये देखिए,
4 omega cube minus 3 omega. Same way you can try for C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Is it clear to you how to get this answer for this table? Okay, this table might be given in the EAC paper. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, EAC पेपर में या आने का पॉसिबिलिटी है. दिस टेबल विल बी गिवन टू डायरेक्टली कॉपी पेस्ट. अगर आपने EAC का क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो लास्ट एपिसोड में शेयर किया था, उसमें टेबल आपको दिखेगा. ये दिस टेबल इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ. फाइन, बट यू शुड नो लाइक टेबल का कैसा आया करके. एंड सो ऑन. वी गॉट द आंसर ऑफ C2 ओमेगा. तो क्या अभी C2 ओमेगा से कंप्यूट करके दिखाया 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन हाउ कैन कंप्यूट रिमेनिंग 1 to 10. अभी ये हो गया कहानी किसका? Cn ओमेगा का. ये कहानी हो गया अभी Cn ओमेगा का. आपको क्या बोला था सर? 3 चीज है. एक है Cn ओमेगा, एक है एप्सिलॉन और तीसरा कौन सा है? n. n इक्वल टू 2 3 वो समझ गया कि कौन सा बचा? 2 बचा, Cn बचा और क्या बचा? एप्सिलॉन. तो Cn ओमेगा यहाँ पे खत्म हो जाता है. नाउ आई वांट यू टू अगेन रीफोकस ओवर हियर एंड पे अटेंशन. यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? 0. फाइन. व्हाट इज दिस? 2 4 6 8 10. बेसिकली even numbers. Very good sir. Basically even number. Fine. 1 minus 1 1 minus 1 plus 1 minus 1. So can I say Cn omega is equal to 1 plus or minus for बोलिए n equal to E1. Yes or no? Do you agree with this statement? Yes. Okay. Sir, I don't want this plus minus. I don't want this plus minus. What can I do? Sir, फिर एक काम करिए. अगर आपको you don't want plus minus, why don't you do one thing? Take Cn का square. Cn square करने से क्या हो जाएगा? Plus minus will go off, and I'm only having is plus minus 1 equal to n. Fine. Plus equal to direct 1. Now you tell me, sir. Second chance. Now you tell me if I have now odd numbers 1, 3, 5, 7, 9. What is there? Omega, minus 3 omega, 5 omega, minus 7 omega, 9 omega, 50 omega square. कभी जब आपका ओमेगा 0 है, जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, सी यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया 2 into 0. 0 0 minus 1 का स्क्वायर प्लस 1. तो Cn0 square equal to 1 for all n even. And similarly, Cn square equal for 0 is 0 for all n equal to odd. Do you agree with this statement or not? Any question over here? कैसे आया? ओमेगा को 0 रखने का. n even है तो 1 मिलता है, n odd है तो 0 मिलता है. प्लस माइनस का लफड़ा अगर आया तो स्क्वायर कर दिया, कहानी खत्म. फाइन. नाउ आई वांट यू टू focus on this expression. Now I want you to focus on this expression. ये वाला, ये देखिए expression अभी आप. I'll just erase this unwanted part so that we can use over here. Now, same way I'll come over here. Tell me what will be h of j omega. What will be h of j omega for all n equal to E1? All n equal to E1 क्या होगा? h of j 0, sir, omega value is 0. h of j 0, omega value is 0 for all h j omega n equal to 0. I mean omega equal to 0. What is Cn? Cn का वैल्यू कितना है? 1 है. तो ये 1 हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा आपके हाथ में? 1 upon root of 1 plus epsilon square. Do you agree to this or not? Yes. Same way, can you tell me what will be the value of h of j0 for all n equal to odd at omega equal to 0? 1. How come 1 beta? 1 upon 1 plus epsilon square into 0. Epsilon square into 0 is 0. 1 upon 1 plus 0. 1 upon 1, answer will be 1. Fine. So can I say h? What is h basically? What is h? What is h? What is h?
amplitude response. So can I say the amplitude response is either 1 or 1 upon 1 plus epsilon square at n equal to 0? मम्मा ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया. क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि हमने जब पढ़ा था बटरवर्थ फिल्टर, उसमें हमको ये बताया गया था कि द वैल्यू इज 1 for omega equal to 0 and then the value starts going to decrease towards 0. हमको ये सिखाया गया था. कब सिखाया गया था? बटरवर्थ फिल्टर के इसमें. लेकिन अब ये क्या बोलता है कि आपका वैल्यू 1 होगा या फिर 1 अपॉन समथिंग होगा. 1 अपॉन समथिंग मतलब कितना? लेस देन 1. 1 upon something is less than 1 ना. 1 upon something is less than 1. It will be either 1 or less than 1. ध्यान दीजिए सर, it will be either 1 or less than 1. तो ये जो गैप आया, this gap is because of what? This gap is because of this factor. Got it sir, what I'm trying to say? अब सुनिए सर, यहाँ पे पूरा स्टोरी क्लियर होने वाला. Just pay attention. I'll showcase it to you and just pay attention sir. क्या हुआ यहाँ पे? फटाफट मुझे बोलिए सर. n equal to even कम, n equal to odd 1. क्या बोलने का? n equal to even कम, even पे कम, odd पे 1. प्लीज फटाफट रट्टा. n even पर कम, odd पे 1. वेरी गुड. even पे कम, odd पे 1. इवन पे कम, ऑड पे 1. पे अटेंशन. ये देखिए n इक्वल टू 6. इवन पे कम क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर. ऑड पे 1, ऑड पे 1. दिखा आपको? ऑड पे 1 से स्टार्ट हुआ. एट ओमेगा इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू? 1. एट ओमेगा इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू? Not 1. What it is? 1 upon under root of 1 plus epsilon square. Now, can you count, sir? Can you count? यहाँ पे क्या है? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हो गया? Once again. Last chance. Can you count? Start counting fast. Once again. 1, fine, एक सेकेंड ना. हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. समझा आपको? इससे क्या समझ में आता है सर? इसमें क्या क्या था हम लोगों ने बटरवर्थ फिल्टर में? बटरवर्थ फिल्टर में क्या था? बटरवर्थ फिल्टर में क्या था? हमेशा वैल्यू 1 होती थी. हमेशा वैल्यू 1 होती थी. करके से क्या बोलने के अपन? मैक्सिमली फ्लैट. यस और नो? और बाद में जो है वो 1 धीरे 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 कम होता था. फाइन. हाउ मेनी ऑफ यू नो चब्बी चिक्स वाला पोयम? चब्बी चिक्स, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, टीथ विद इन, कर्ली हेयर. भूल गए क्या? Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. नर्सरी की पोएम मेरी बेटी बहुत पढ़ती है. नर्सरी में नहीं पढ़ा था पोएम में? चलो once again, सब मेरे साथ में. Put your hands over here. Quick, quick, quick. चलो, चलो, चलो. यहाँ पे हाथ रखो सब मेरे साथ में. Quick. Fast. Chubby chicks. Fast. Chubby chicks. Come on, quick. Chubby chicks. Come on, once again. Chubby chicks. अरे करो यार, क्या शर्माते हो यार? Chubby chicks. Are you oscillating or not? Fine, very good. Chubby chicks, shabby shoe, chubby chicks, chubby chicks. दिखा आपको? You know butterworth? ये बटर मतलब क्या? बटर मतलब मस्का. क्या बात है यार, इतना प्यार से बोला मस्का. वेरी गुड. तो आपको वैसा मस्का लगाना है, मक्खन लगाना है सर. मस्का दिखा? मस्का. और शेबी शिव में चब्बी चिक्स यू हैव टू डू. तो शेबी शिव विल गिव यू रिपल. शब्बी शिव विल गिव यू
रिपल्स, चेबिशेव विल गिव यू रिपल, याद रखिए सर, आपको यहाँ पर रिपल मिलता है, और ये रिपल कौन डिसाइड करेगा, ये 1/1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। सब समझा? अभी पूरा स्टोरी हम लोग जो है वो वोकैबुलरी को पढ़ के देखने वाले, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पे अटेंशन, यू मिस्ड अ बिट चिक्स। हाँ चलो स्टार्ट। द शेबिशेव एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स, वर्डिंग सुनिए अभी आप, वर्डिंग सब पूरा वर्डिंग से, द शेबिशेव एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स हैज रिपल्स। व्हाट इज रिपल? फाइन, इन द पास बैंड एंड इट इज स्मूथ इन द स्टॉप बैंड। फाइन, स्टॉप बैंड में स्मूथ हो जाता है, लेकिन पास बैंड में वो रिपल करता है। एंड द पास बैंड इज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। Why 0 to 1? कौन सा फिल्टर है 0 to 1? नॉर्मलाइज, सही बोला जिसने भी बोला, नॉर्मलाइज, ओमेगा से इक्वल टू 1, कट ऑफ इक्वल टू 1, नॉर्मलाइज, यहाँ पे लिखा है सर नॉर्मलाइज, सीधे वर्डिंग से हो रहा है नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज करके यहाँ पे आपने 1 बोला है, नॉर्मलाइज नहीं तो क्या करने का, ओमेगा अपॉन दैट वैल्यू। फाइन, देयर इज अ टोटल ऑफ n मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपने काउंट किया ना अभी, n मैक्सिमा एंड मिनिमा 6 था तो 1 2 3 4 5 6, 7 रहा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैक्सिमा मिनिमा, 6 तो 6 मैक्सिमा मिनिमा, 6 बार ऐसा करने का, 26। ओके फाइन, एंड देयर इज अ टोटल ऑफ n मैक्सिमम मिनिमा ओवर द पास बैंड। Any doubt in equation 7.44 and equation 7.45? Any doubt? ये अब भी डिस्कस किया हम लोगों ने, ऑड पे 0, इवन पे 1, ऑड पे 1, इवन पे कम, ऑड पे 1, इवन पे कम, है ना, ऑड पे 1, इवन पे कम। The therefore decision is this: the parameter epsilon control the height of the ripples in the pass band are the ratio of maximum gain to minimum gain is. Sir, ये क्या है? Can you explain me? R is the ratio of maximum gain to minimum gain. What is the maximum gain, sir? कितना आया? क्या बोला आपने? क्या याद किया था? ऑड पे 1, ऑड पे 1, मैक्सिमम गेन इज 1, इवन पे कम, ऑड पे 1, इवन पे कम, कम कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर ये? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म जो था डिनोमिनेटर चला जाएगा, तो कहना है इससे दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये देखिए, R is equal to 1 upon 1 plus epsilon square. Understood? Now, अभी क्या करने वाले हम लोग? अब मैं R को टोपी पिनाने वाला हूं। अब मैं R को टोपी पिनाने वाला हूं। कैसे टोपी पिनाएंगे R को सर हम लोग? ऐसा मैं इसको कैप पिनाने वाला, टोपी। तो R को कैप कब पिनाने का? जब R काय में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? डेसिबल में। वेरी गुड बेटा। जैसे आपने बोला था जीपी कैप। What is GP cap? 20 log of GP. Similarly, GS cap. What is GS cap? GS cap कौन होता है? स्टूडेंट काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी ने कैप पहन दिया, क्या बन जाएगा? GS cap का फॉर्मूला क्या होगा? 20 log of GS। उसी प्रकार से मुझे बताइए, अगर मैंने R को कैप पिना दिया तो क्या बन जाएगा वो? 20 log of 1 plus epsilon square। वेरी गुड बेटा, ये देखिए 20 log of root of 1 plus epsilon square, and you know very well 20 log of x raised to 1 by 2। 1 by 2 क्या लिखा? raised to, रूट है ना 1 by 2, तो 1 by 2 कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। फाइन, ये कट हो जाएगा यहां से, तो क्या होगा? 2 1 2 10। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्रेशन। समझा 7.46 भी कैसे आया? इसके 7.47 कैसे आया? कैन यू हेल्प मी आउट नाउ? 7.47 कैसे आया? डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या बोला था मुझे मेरे चाचा ने? बोला देख भाई, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इक्वल टू 2, है ना? लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इक्वल टू 2, सो लॉग ऑफ व्हाट? 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर रेज टू 10, तो 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या रहेगा? 10 का स्क्वायर r,
10 raised to r, 10 raised to r divided by 10 और ये +1 वहां जाके -1 epsilon square. Have you understood how I got this? Simple definition of log. 3 square is 9, so log of 9 to the base 3 equal to 2. ए भाई एक तो लेट आते और डिस्टर्ब करते पूरी क्लास को. If you're not interested, please don't come. मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना. चलो फाइन. एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू 10 r कैप अपॉन 10 -1. अंडरस्टूड? ये कैसे एक्सप्रेशन आया? बिकॉज ऑल द रिपल्स इन द पास बैंड, ये देखिए अभी आप अग्रीड कि रिपल्स होता है, लेकिन रिपल्स अगर आप देखते हो तो रिपल का जो बाउंड्री जो बना के रखा है वो सीमित है. इट इज सेम बाउंड्री. करेक्ट और नॉट? कितना कितना रिपल हुआ? 6 बार रिपल किया. मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा. सिंस ऑल रिपल 1 2 and 3 फाइन. सेम वे 1 2 3 4 ये सब रिपल एक ही हाइट का है. सब रिपल का डेप्थ एक ही हाइट का है. तो कैन आई से दिस इक्वी रिपल? Hence these filters are also known as equi-ripple filters. Chebyshev are also known as equi-ripple filter because the height of the filters, the height of the ripples in the pass band is of equal, and hence it is known as equi-ripple. And the Chebyshev polynomial Cn omega, ये था आपका Cn omega. ये Cn omega क्या बोला जाएगा? This Cn omega is known as Chebyshev polynomial or also known as equi-ripple function. Cn omega is also known as Chebyshev polynomial or equi-ripple function because यहाँ पे जो रिपल्स आने वाला है उनका हाइट कैसे होगा? उनका हाइट सेम हाइट का होने वाला है. Like sustained oscillations, marginally stable वाला केस, neither increasing nor decreasing, like that way. Okay, this is about the meaning of equi-ripple function. The ripple is present only over the pass band 0 to 1. At omega equal to 1, the amplitude response is 1 upon under root of 1 plus omega square equal to 1 upon r. ये देखिए आप, पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. क्या बोला मैंने? At 1 even होने दो या फिर odd होने दो. What is the value, sir, at 1? What is the value? What is the value? But what is 1 upon epsilon square का रूट? वो क्या है? वो क्या है? अभी पढ़ा हम लोगों ने. R. Very good. That can be written as 1 upon R. So at omega equal to 1, the value of the amplitude response will be 1 upon r, and where r is 1 upon epsilon square. And r is what? The r is the ratio of the maximum gain to minimum gain. R is the ratio of maximum gain to minimum gain. Fine. Epsilon controls the height of the ripples. Okay, I hope the things are clear to you. Kindly make a note of it. For omega greater than 1, है ना? See 1 upon r. At omega equal to 1, the value is 1 upon r. For omega equal to 1, omega greater than 1, the gain decreases monotonically. Gain decrease होना शुरू कर, जैसे हम लोग 1 के आगे जाना शुरू करते हैं, gain धीरे धीरे कम होने लगता है. Yes, okay. Point number 5 very important. Point number 5 very important. जब कोई रिलेशन बता रहे बटरवर्थ चेबीशेव के बीच में, for Chebyshev filter, the ripple RdB takes the place of GP. GP का यूज किया था बटरवर्थ में, पास बैंड गेन. याद है? वो बोलता है जो पास बैंड गेन जो था GP बटरवर्थ में, वही है आपका RdB इन Chebyshev filter. Understood? For Chebyshev filter, the ripple R cap dB takes the place of GP cap. What is the meaning of cap? 20 log. The minimum gain in the pass. For example, R cap less than 2 dB specifies the gain variations of more than 2 dB cannot be tolerated in the pass band. कितना चाहिए मुझे? R less than 2 dB. Maximum 1.
मिनिमम कितना था याद है आपको कुछ? मिनिमम 0.794 याद है वैल्यू? 0.794 सर नहीं याद आया, रुको आई शो यू सर। 0.794 कहां गया रे क्वेश्चन? बटरवर्थ वाला, बटरवर्थ स्टॉप, आ गया। मिला आपको? ये हम लोगों ने 9 तारीख को किया था। दिस क्वेश्चन, पास बैंड टू लाई बिटवीन 1 एंड 0.94, इतना ही चाहिए, इसके नीचे नहीं चलेगा। फॉर ओमेगा 0 to 10, जीपी कितना दिया यहाँ पर? पढ़ो जीपी कितना दिया है? -2 dB। कैसे आया सर, कैसे आया -2 dB? 20 log of 0.794, 20 log of 0.794, कितना आंसर आया? -2। अब ये सेम -2 जो है वो यहाँ पे यूज करने वाले। अटेंशन सर, 0.794 को बोला उसने -2 dB। आपको मैंने कैलसी पे करवा के दिखा दिया। अभी आप यहाँ पर आके देखिए सर, वर्डिंग्स पढ़िए, पॉइंट नंबर 5। For example, R less than 2 dB specifies the gain variations of more than 2 dB cannot be tolerated. In the Butterworth filter, GP equal to -2 dB means the same thing. दिखाया आपने, कैलकुलेट करवा के दिखाया कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। GP equal to -2 dB means the same thing. वहां पे दिया जाएगा आपको GP कैप इक्वल टू -2 dB और यहां बोला जाएगा आपको R less than 2 dB, R cap less than 2 dB. Whenever you see the design question of a Chebyshev filter, you will always notice R cap and GP cap will be absent. The GP cap is nothing but R cap in case of Chebyshev. वहां पे R बटरवर्थ और Chebyshev में in case of Butterworth you have GP, right? In case of Butterworth you have GP, but in case of Chebyshev you have R. Fine, very good. If we reduce the ripple, the pass band behavior improves. अगर रिपल आप कम कर देते हो, वेरिएशंस, तब भी चिक्स वाला इसको आपने कम कर दिया, तो पास बैंड बिहेवियर विल इंप्रूव, द बटरवर्थ की तरफ जाना शुरू करेगा वो। बट इट डज सो एट द कॉस्ट ऑफ स्टॉप एंड बिहेवियर। अगर आपने आर डिक्रीज कर दिया, व्हाट इज आर? रिपल आपने कम किया, तो क्या होगा? रिपल कम करने से वो बोलता है कि आपका एप्सिलॉन भी कम होगा। व्हाई? बिकॉज आर एंड ई आर डायरेक्टली रिलेटेड है ना। अगर आपने आर कम कर दिया तो ई भी कम होगा। 10 स्क्वायर इज 100, 10⁻1 इज 10। तो अगर आर 2 का 1 किया तो आपका ये एप्सिलॉन भी कम हो जाएगा। तो द गेन एट द स्टॉप बैंड विल इंक्रीज, स्टॉप बैंड गेन इंक्रीज होगा। तो हेंस इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द अलाउएबल पास बैंड एंड द डिजायर्ड एटेन्यूएशन स्टॉप बैंड। Epsilon equal to 0 yields 0 ripple. The filter now become all pass filter as shown evaluating epsilon equal to 0. 7.42 किधर है भाई? 7.42 7.42 ये वाला था। एप्सिलॉन अगर मैं 0 कर दिया तो क्या होगा? R को 0 कर दिया, R को कम कर दिया, जिससे उससे एप्सिलॉन कम होगा। एप्सिलॉन कम करके इतना कम कि एप्सिलॉन को 0 किया तो क्या आंसर होगा फिर? 1 मतलब कोई भी आया सबको अलाउ, करेक्ट ना? फिल्टर काम ही नहीं करता, लाइक एक्टिंग लाइक अ ऑल पास फिल्टर। इफ एप्सिलॉन इक्वल टू 0 देन दिस फिल्टर विल बिकम व्हाट? ऑल पास फिल्टर। जो यहाँ पे आपने लिखा था लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर क्या बन जाएगा फिर? ऑल पास फिल्टर। लो फ्रीक्वेंसी आने दो, मिड फ्रीक्वेंसी आने दो, हाई फ्रीक्वेंसी आने दो, ऑल विल बी अलाउड विद अ कांस्टेंट गेन। सिंपल आपके सामने, जस्ट सब्स्टिट्यूट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन। The moment I substitute epsilon equal to 0, the moment I substitute epsilon equal to 0 over here, I will have 1 upon 1 equal to 1. कोई भी ओमेगा होने दो, the gain will be equal to 1. The gain will be equal to 1 independent of ओमेगा। आपका ओमेगा कुछ भी होने दो सर, 0 होने दो या फिर इंफिनिटी होने दो, आपका एच जे ओमेगा रहेगा 1। ऑल पास, सबको अलाउ करने का, नो ब्लॉकिंग एट ऑल। फाइन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अलाउड। व्हाई? बिकॉज व्हाट वी वांट सर, व्हाट वी वांट अ फिल्टर लाइक दिस। यहां पे आपने क्या किया? एप्सिलॉन को आपने कम कर दिया,
एप्सिलॉन कम करने से क्या हो गया, आपको ऐसा मिल रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका स्टॉप बैंड का जो मैग्नीट्यूड, जो गेन जो कितना हो रहा है अभी, इट इज नाउ इंक्रीजिंग। तो स्टॉप बैंड गेन जो आपको जो कम मिल रहा था वो बढ़ जाएगा, वो भी ऑल पास की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। इट इज लाइक अ ट्रेड ऑफ, वेदर शुड आई रिड्यूस एप्सिलॉन with the compromise in the GS value, or should I decrease GS with the increase in the R value? It's like a trade-off. You have to compromise between the two. Any doubt over here? क्या करना है? Okay. Now pay attention. Finally, the Chebyshev filter has a sharper cutoff than the same order Butterworth. This actually explains some inferior. Now, what is the meaning of this? Chebyshev filter has a sharper cutoff. इसका मतलब क्या है? ये पूरा एग्जांपल की तरफ से एक्सप्लेन किया गया है। पे अटेंशन नाउ। ये काय का ग्राफ है? सॉरी, ये काय का ग्राफ है? एक सेकंड, I'll redraw for you. What is the graph? What is this graph? Low pass filter. Fine. Now pay attention. What is the value at this omega equal to 1? 0.707। मैं इसको बोलता हूं ओमेगा इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 20, क्या वैल्यू आया था? 0.1। याद है सर? ये हम लोगों ने किया था सर, नहीं पता है? ओके, डोंट वरी सर, आई विल शो यू, पे अटेंशन। ये देखिए सर, किधर है आर्थ भागवत? आर यू देयर? याद है वैल्यू 10.693? इसे बड़ा डिस्कशन हुआ था अपने सर, 10.693 लेने का कि 11.261 लेने का। फाइन, फिर आपने को ये वैल्यू आया था, तो बोला देखो 0.707 मिलेगा आपको। अब फिर एट टिल 10 आई वांट दिस एंड 20। तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये 10 है तो 10 पे वैल्यू कितना आया आपको? 0.794। yes, this is what at 10 at omega c cutoff 10.693. what is the value at omega c? 10.693 omega c 10.693. what is the value? 0.707. at 20, what is the value at 20.1? so now if you try to figure out that, can I say this is the pass band, इसके बाद वाला क्या है? स्टॉप बैंड। फाइन, बीच में कौन है? ट्रांजिशन बैंड। क्या वर्डिंग यूज किया मैडम? ट्रांजिशन बैंड। क्या वर्डिंग है ये? ट्रांजिशन बैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन बैंड? 2020 लाइफ वाज वेरी नाइस, 2022 लाइफ इज वेरी गुड, सो ऑन। इसके बीच में कौन आ गया? कोविड आ गया। फाइन, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। फाइन, ट्रांजिशन पीरियड मतलब वो होता है जहां पे चेंज होता है। कितना रखा आपने ट्रांजिशन पीरियड? क्या वैल्यू ट्रांजिशन पीरियड का? व्हाट इज द वैल्यू ट्रांजिशन पीरियड? 10। 20 माइनस 10। अब मैं आपको बोलता हूं कि सर मुझे ट्रांजिशन पीरियड को थोड़ा कम करना है। आई डोंट वांट 10, आई वांट ऑफ 6। तो क्या होगा स्टॉप बैंड का वैल्यू? मैंने ट्रांजिशन बैंड 10 के जगह पे 6 कर दिया, क्या हो जाएगा? 16। आई होप यू ऑल अग्री टू इट। आई वांट टू रिड्यूस द ट्रांजिशन बैंड फ्रॉम 10 to 6। दिस आई एम ट्राइंग टू बॉटल नेक इट, आई एम ट्राइंग टू पुट अ थ्रॉटल। इसको मैंने स्ट्रिंजेंट कर दिया, इसको मैंने अपने कंडीशन लगा दिया। नहीं, देखो 6 में काम खत्म करना है। आई वांट अ शार्पर कट ऑफ। व्हाट सुनिए सर, आई वांट अ शार्पर कट ऑफ, मतलब जो ये पहले 20 पे कट होता था, 20 तक आराम से सो के आने का, अब मैं बोलता मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे शार्प कट ऑफ चाहिए। शार्प कट ऑफ, पे अटेंशन। दिखा आपको शार्प कट ऑफ? पहले ऐसा आने का, अब ऐसा डायरेक्ट शार्प कट ऑफ कर। इसको मैंने थोड़ा और कम कर दिया, उसको मैंने स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा दिया। नाउ पे अटेंशन, फॉर ट्रांजिशन बैंड, माइंड में याद रखिए आप, फॉर ट्रांजिशन बैंड इक्वल टू 10, क्या बोला मैंने? ट्रांजिशन बैंड इक्वल टू 10, बटरवर्थ, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n? 4 था ना ऑर्डर ऑफ द फिल्टर।
डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। सर ये वाला क्वेश्चन इतना क्या शॉक लेके सुन रहे हैं आप? ये देखिए, आपको ये वैल्यू आया था 3.701, फिर आपने बोला नहीं नहीं हमको इंटीजर वैल्यू लेने का है कन्वीनियंट के हिसाब से। प्रांजल को पूछा, प्रांजल सर सिंपल है 3 raised to 2.53, टेल मी द आंसर। सर ये बीच क्या आएगा? नहीं मुझे और इजी चाहिए लाइक 3 raised to 2 बोलने का, 3 raised to 3, आई डोंट वांट इट इन बिटवीन वाला। तो मैंने क्या किया, इसको 4 कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका ट्रांजिशन बैंड 10 था तो आपको n कितना आया? 4 आया। अब मैं बोलता नहीं मुझे ट्रांजिशन बैंड 10 ना ही 6 चाहिए, क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। तो व्हाट डू यू फील, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? हाँ, कम होगा कि ज्यादा होगा? जस्टिफाई योर आंसर सर। कम हुआ कि ज्यादा होगा? तो क्यों ऑर्डर क्यों बढ़ाने का? सही, अभी राइट ट्रैक। ऑर्डर बढ़ाने से पोल बढ़ता है, पोल बढ़ने से, अरे भाई ये पढ़ाया था मैंने, आप क्या कर रहे हो? डोंट वरी सर, आई शो यू, वेट। ये देखो भाई लोग, नॉट कैन टेल मी द आंसर, नॉट ये वाला नहीं, ये वाला, यस। फिनिश, अब बता सकते हो। इफ यू इंक्रीज द ऑर्डर, रेड वाला n इक्वल टू 1, ब्लू वाला इज n इक्वल टू 2, ग्रीन वाला इज n इक्वल टू 3 एंड पिंक वाला इज n इक्वल टू 100, व्हाट विल हैपन इफ आई, व्हाट टू डू? पहले मैंने बोला 10 का मुझे ट्रांजिशन बैंड चाहिए, ट्रांजिशन बैंड 10, और ट्रांजिशन बैंड मुझे कितना करना है? 6, मींस आई वांट शार्पर कट ऑफ। If I want sharper cutoff, I should increase or decrease the order of the filter? Increase sir. Increase or decrease? आपके सामने आंसर है, increase के decrease। Red color n equal to 1, red color n equal to 1, blue color n equal to 2, green color n equal to 3, n equal to 100. Just see the transition band for n equal to 100. ये भाई तो यहाँ पे इसका ट्रांजिशन बैंड है, ये इसका ट्रांजिशन बैंड है सर, ये देखिए, दिखा आपको? दिस इज द ट्रांजिशन बैंड फॉर n इक्वल टू 100। कैन यू ड्रॉ द ट्रांजिशन बैंड फॉर n इक्वल टू 1? यस सर, ये देखो सर, ट्रांजिशन बैंड विल बी सर फ्रॉम हियर टिल, कहां जाओ भाई सर, कहां जाओ, ये इधर किधर आ रहा है? n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन बैंड ये था, n इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन बैंड कम हो गया, 3 का कम हो गया, 5 का और कम हो गया, 100 का एकदम नैरो हो गया। फाइन, इससे ये साफ हो जाता है कि ट्रांजिशन बैंड अगर आपको कम करना है तो आपको n हैज टू बी मोर देन 4। डू यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट और नॉट? डू यू अग्री टू स्टेटमेंट और नॉट? मैंने क्या बोला सर, फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं भाई, याद रहेगा वरना भूल जाओगे। बोला टीबी अगर 10 है तो n 4 था, टीबी अगर 4 हो गया, 6 हो गया, टीबी अगर 6 हो गया तो n शुड बी मोर देन 4, 4 मोर, 4 दिखा आपको, 4 एरो बनाया मैंने, 4 अप, मोर देन 4। किसकी बात थी सर ये, किसकी बात थी? बटरवर्थ की बात थी ये। क्या बोला बटरवर्थ? अगर आपको ट्रांजिशन बैंड कम करना है तो n 4 नहीं, n 4 से ज्यादा होना चाहिए। निधि सामंत, मुझे आप बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, व्हाट विल द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस? 1 अपॉन SCR प्लस 1, इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा 1 अपॉन SCR प्लस 1। अरे सर बहुत बार पढ़ाई किया है सर, इतना क्या सोच रहे हो? अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे और एक यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन? 1 अपॉन S स्क्वायर। सही बोला आपने, 1 अपॉन S स्क्वायर। मैंने एक लगाया S रेज़ टू 1, 2 लगाया S स्क्वायर, और एक लगा दिया S क्यूब, और एक लगा दिया S4। जितना ज्यादा कैपेसिटर, जितना ज्यादा इंडक्टर, उतना ऑर्डर बढ़ना शुरू होता है। अभी आप मुझे बताइए सर, n इक्वल टू 4 के लिए कितना रेजिस्टर, कितना कैपेसिटर इंडक्टर लगेगा? R इज वेस्ट, धरती का बोझ, R को छोड़ दो।
I require 4 इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। आप सी 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 बोलो या सी एल 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 बोलो या एल सी सी एल बोलो, वॉट एवर कॉम्बिनेशन वांट टू अडॉप्ट, बट 4 होना जरूरी है। 2 इंडक्टर, 2 कैपेसिटर या 3 इंडक्टर, 1 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर, दैट इज योर चॉइस। नाउ यू टेल मी इफ आई गो increasing the value of 4, for example 6, what will happen? How many inductor capacitor are required? 6, 3 इंडक्टर 3 कैपेसिटर, 4 इंडक्टर 2 कैपेसिटर या 6 कैपेसिटर, योर चॉइस। तो प्रॉब्लम क्या है? उतना ज्यादा कंपोनेंट लेना पड़ेगा दीपाली मैडम से। 11:15 बजे बच्चे क्लास में जाते हैं, 2:45 बजे बाहर निकलते हैं। 6 कैपेसिटर लगाओगे, 8 बजे निकलोगे बाहर। 12 इंडक्टर कैपेसिटर निकालोगे तो रात को 1 बजे बाहर आओगे। सर वेयर टू स्लीप, आई एम फीलिंग स्लीपी। अब भी बाहर है हम लोग, 11 बजे से लैब में थे। इज इट गुड टू इंक्रीज द ऑर्डर? इज इट गुड? इफ यू आर इन लव विथ कसम्बे सर, इंक्रीज द ऑर्डर। इफ यू डोंट लाइक कसम्बे सर, डिक्रीज द ऑर्डर। चॉइस इज इन फ्रंट ऑफ यू। फाइन, ओके, नाउ पे अटेंशन। Chubby cheeks, dimple chin, rosy lips. क्या बोला मालूम शेबी शिव? शेबी शिव बोलता है अगर आप और स्ट्रिक्ट करोगे तो ऑर्डर कम होगा। सच्ची? पढ़ो ना यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। The Chebyshev filter has sharper cutoff, smaller transition band than the same order Butterworth filter. समझा आपको? अभी देखो, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, सर कुछ भी बात करते हैं। चलो सस्पेंस खोल देते हैं हम लोग, सस्पेंस खोल देते हैं। ये कहानी चलते रहने वाली है। अभी आप डायरेक्टली इधर आ जाइए, अभी आप डायरेक्टली इधर आ जाइए। बड़े ध्यान से, क्या क्वेश्चन है? डिजाइन अ Chebyshev लो पास फिल्टर, करेक्ट। जीएस कितना? जीएस कितना है? -20। सर जीएस कितना है? -20। पहले भी उतना ही था, 0.1 बटरवर्थ के टाइम पे। आर कितना है? 2 dB। उतना कितना था? 2 dB। जीपी इक्वल टू -2 dB। यहाँ पे क्या बोला? आर लेस देन 2 dB। वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, वहां पे -2 बोला था, यहाँ पे लेस देन 2 बोला है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। पॉइंट नंबर 5 समझा हम लोगों ने। नाउ पे अटेंशन, ओमेगा कितना है? 0 to 10। सर वहां पर भी 10 था, यस और नो? यस। वहां पे ओमेगा एस कितना था? ओमेगा एस कितना था? सर ओमेगा भी 10 था, ओमेगा एस कितना था? स्टॉप बैंड कितना था? 20। वेरी गुड सर। ओमेगा एस कितना था? 20 था। 10 से लेके 20 तक आपको ट्रांजिशन बैंड बना के दे दिया। अब शेबिशी बोलते हैं 9, 29, 16.5 कर दीजिए। कितना है? 16.5 दिख रहा है आपको? समझा के सर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? मैंने ये बोला कि जब पहले 10 से लेके 20 तक था, कहां? बटरवर्थ के अंदर। धक्के में क्या था? 10 से 20 तक। चब्बीचिक ने क्या बोला? नहीं सर, 10 से 16.5 कर दो और स्ट्रिंजेंट कर दो। स्ट्रिंजेंट करने पर क्या होना चाहिए? एन का वैल्यू 4 का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यस और नो? n इक्वल टू 4 आया था कब? जब 10 से 20 था। अब मैं बोलता नहीं सर, 10 से 20 ने 10 से 16.5 कम कर दो, 4 से ज्यादा आना चाहिए, 5, 6। शेबिशी बोलता है नहीं, सुनिए, n वैल्यू विल बी 2.99, n इक्वल टू 3। वाह मोदी जी वाह। समझा आपको? क्या है n का वैल्यू? स्ट्रिक्टनेस करने पर भी n का वैल्यू कम हो जाता है। क्यों कम हो गया? क्यों कम हो गया? बिकॉज शेबिशिव का ट्रांजिशन बैंड इज स्मूदर। वर्डिंग्स देखिए सर, वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है यहां। पॉइंट नंबर 7। Chebyshev filter has sharper cutoff than the same order Butterworth.
n इक्वल टू 4 के लिए 10 का ट्रांजिशन बैंड था बटरवर्थ में, अभी n इक्वल टू 3 कम कर दिया, एक कम। ये नहीं बोलता कि नहीं अभी 10 टू 20 था, चलो 10 टू 30 दे दो मुझे, फिर कम कर दिया आपने, मैं अभी और मजा करूंगा, नहीं, इसको भी कम कर दिया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ Chebyshev filter. Why we learning Chebyshev? Because of this. Any doubt over here कैसे आया? थियोरी यहाँ पे खत्म होता है Chebyshev का। अभी शुरू होगा पूरा डेरिवेशन, अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ n, फिल्टर ऑर्डर, पोल लोकेशन, स्टार्ट। For a normalized Chebyshev filter, the gain in dB, see equation 7.42, चलो ऊपर 7.42, very first question, very first equation of today। दिखा आपको क्या था ये? एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स, इसको बोलने का आज के बाद में G, डोंट कॉल इट h of j ओमेगा, कॉल इट एज G, चलेगा? G बोला तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, G बोल दिया इसको मैंने। Now you take the G cap. How to take G cap? What will happen? 20 log of 1 upon under root 1 plus epsilon square Cn square omega square। आगे सॉल्व करिए। log of 1 upon x is what? x inverse, माइनस यहां चला जाएगा 1/2, क्या आएगा फाइनल एक्सप्रेशन? -10, -10, 10 क्यों? 20/2 ना, -10, -10 log of 1 plus epsilon square Cn square। चलो भाई, लेट्स सी, -10 log of 1 plus epsilon square Cn square बराबर है सर? चेक करो, बराबर है, करेक्ट है, फाइन। देन फिर क्या किया? द गेन इज Gs at ओमेगा s, ओमेगा के लिए G, ओमेगा P के लिए Gp, ओमेगा S के लिए Gs। श्री, फरहाद, रोमियो, जूलियट, जी बात याद रखने का, फाइन, सिंपल, ओके। G के लिए ओमेगा, Gs ओमेगा S है ना, Gs के लिए ओमेगा S, जस्ट रिप्लेस ओमेगा बाय ओमेगा S, तो G will become now Gs, कपल, फाइन। नाउ फेनिल इलेक्ट्रॉनिक्स कपल बनाने का, इज वेरी गुड स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैन। ना डन टिल हियर। अब क्या करेंगे हम लोग? आदित्य क्या बोलने का आज के बाद में? आर्बिट्ररी फंक्शन जनरेटर, बहुत काम के बेचारे, इट वर्क टू मच ऑन आर्बिट्ररी फंक्शन जनरेटर। नाउ यू हैव व्हाट? ओमेगा एस, टेक द लॉग, गेट द आंसर। अंडरस्टूड? कहां से आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्रेशन? ये वाला डेफिनेशन ऑफ लॉग, एप्सिलॉन स्क्वायर यहां को रखा, Gs अपॉन 10 माइनस 10 रेज़ टू 1 प्लस वहां जाके -1। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Cn स्क्वायर ओमेगा s? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Cn स्क्वायर ओमेगा s? Cn स्क्वायर ओमेगा s, ऊपर आइए, Cn स्क्वायर ओमेगा दिखा आपको ये? cos n cos इनवर्स ओमेगा, cos n cos इनवर्स ओमेगा, Cn ओमेगा होता है cos n cos इनवर्स ओमेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए, cos, ये कोसाइन हाइपरबोलिक वाला, हाइपरबोलिक cos n हाइपरबोलिक cos इनवर्स ओमेगा, और ये जो 2 था स्क्वायर जो टर्म था, दोनों का स्क्वायर को कॉमन स्क्वायर लेके यहाँ पे 1/2 डाल दिया, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन था वो एप्सिलॉन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन? वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सर, एप्सिलॉन इज व्हाट? 10 रेज़ टू r कैप अपॉन 10 माइनस 1, 10 रेज़ टू r कैप अपॉन 10 माइनस 1। इज इट क्लियर टू यू? क्या किया यहाँ पे? हाइपरबोलिक कॉस था, उसको यहाँ लेके चले गए, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स हो गया, फिर यहाँ पे जो कॉस इनवर्स टर्म था उसको यहाँ लेके चले गए, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन गोइंग टू गेट। इज इट क्लियर विद यू और नॉट? इक्वेशन 7.49a, इक्वेशन 7.49a,
Same way, equation 7.49b is obtained using frequency scaling method. Omega replaced by omega p. हमने किया था ना, रिप्लेसिंग ओमेगा बाय ओमेगा पी. तो जहां जहां ओमेगा एस वहां ओमेगा एस अपन ओमेगा पी. इसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी स्केलिंग. यू रिमेंबर दिस फ्रीक्वेंसी स्केलिंग मेथड किया था हम लोगों ने. दिस हाउ आई गॉट इक्वेशन 7.49. ये होगा आपका n का इक्वेशन. इतना सिंपल था ना इक्वेशन. बटरवर्थ के लिए लिखा है बटरवर्थ. सी बटरवर्थ. For Butterworth, this was the value of expression of n. This was the expression of n for Butterworth. Determination of n. ये देखिए n. Do you remember expression? ये expression याद है आपको सबको? फास्ट. Do you remember प्रांजल? ये पता expression ये वाला हमने यूज किया था 9 तारीख को दिन 3 से 5 केस में. एक्सप्रेशन किसके लिए है? बटरवर्थ के लिए. शेबिशिव के लिए कौन है? हाइपरबोलिक कॉस. ये शेबिशिव के लिए है. शेबिशिव के लिए है. यू हैव दिस एज एन एक्सप्रेशन. फाइन. एक मिनट, पे अटेंशन. ये दिखा आपको कैलकुलेटर. यहां पे आपको दिखा HYP. क्लिक ऑन HYP. क्या है वहां पे? हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक tan, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स, हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स. 5 आ गया. दिखा आपको? So I'll be using this in the calculator. That's all for today. श्रुतिमन, मुझे लेक्चर बताने का कभी रखने का. You discuss and let me know. I want extra lectures to complete the